Hello, everyone. Once again, welcome back to Kuti Stories with Ash, brought to you by Peter England, our travel partners, Thomas Cook. Today's guest needs no introduction. That's a very cliched line. But there are a lot of stories between us, spoken about us, spun about us, but truly both of us have spun our own stories. Welcome on the show, Harbhajan Singh. How are you doing? Very well. Thank you, Ashwin, for Thank you for having me. doing this, Bajuba. Not at all. My pleasure to be here. Thank you. I'll start with my memory. Like I said, I usually take the guest through all the three segments of the show. First is Reminisce with Ash, which is what we'll be talking about all the stories. Anything under the sun comes under that. The next one is a gentleman's league question. Let's discuss about gentleman cricketer first before that. And final one is DRS with Ash before we Okay. go into a free hit. I'll update you on DRS with Ash. With Ash is I'll ask you an incident which you can review. Okay. If I give you an opportunity to review that, you can talk about that particular incident. Cool. So, Look forward to it. right, we'll dive into the first segment. It's Reminisce with Ash. Bajupa, let me just start away first firing it off. Whatever said and done, I would always be an all-time fan of yours. Arey yaar. No, because I'll tell you the story behind it. When Harbhajan Singh broke through in 1999, was it? Was it your Greg Blewett wicket? Yeah, correct. You came in briefly, and since then, for about 3-4 years, I was not a serious off spinner at all. But I took inspiration, and I used to throw my hands open and start bowling like you. Those were amazing days, to be honest. I used to enjoy watching you bowl. But what was your first memory of having broken into the Indian team? How did it happen? There are stories that Saurav Ganguly had seen you and picked you and drafted you in. Is there any merit to it? Because stories float all around. No, those are all stories, but thank you for the nice words, what you mentioned earlier. It's a pleasure to be here. We are talking now, we are getting a chance to interact with each other rather than hearing From other different people's mouth. Different story comes out, and sometimes you might be hearing Harbhajan Singh said this, Harbhajan Singh said this, Harbhajan Singh is jealous. So I have got no agendas, nothing whatsoever. You started there. I wanted to address it some other stage, but once you called me and you said, Ash, ऐसे वैसे बात चल रही है, but ऐसे नहीं है. Correct. You didn't have to do it. Why did you do No, it? because in the end, I feel, nobody should feel, कि मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, या he is jealous. So I am not that kind of a person. मेरे को बहुत लोगों ने ना उल्टा सीधा समझ रखा है. So what I was on the field, I'm totally opposite of the field. You don't know me that well, off the field because हमने कभी उतना time spend नहीं किया. But I feel cricket was part of my life, which obviously gave me everything. But I feel life has got more to it. Life is not just playing cricket and chasing those balls and taking those wickets. Life have got bigger meanings. So if you can be a good human, that is what it is for me. My records stays here. Everything stays here. What goes with me if I have made other people's life little better, than what it was. So मेरे लिए वो important है to be a good human being. खेलते हुए लगता था कि हाँ यार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है. यस, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर मैं जाऊँ तो उस समय वो था भी. बट आज जहाँ पे मैं बैठा हूँ, आई कैन ओनली बी ग्रेटफुल. आई कैन ओनली बी थिंकिंग दैट गॉड हैज़ बिन रियली रियली काइंड. वेयर आई वॉज एंड वेयर आई एम, आई कैन ओनली fold my hand and say 1,000 of time thank you, and that'll not be enough. So I'm just grateful for everything happened for me. So rather than complaining, ये नहीं अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, why he's doing well, सब अपने अपनी लाइफ में अपनी अपनी किस्मत लेके आए हैं, है ना, और सबको अपने अपने लिहाज से मिलेगा. For me, I might get this much. For me, ये this much is this much. क्योंकि मैं जहाँ से आया था मेरे पास तो कुछ भी नहीं था. So now I've got everything. So why am I complaining? If I'm complaining, हम उस जोन में कभी कभार जाते हैं, but I'm not complaining anymore. I'm happy. I'm content. Everything is happening is for good. You played for CSK. Yeah. It's irrelevant to what you've said, but I have a reason why I'm going to CSK. I'm also currently playing for CSK. You took on a small avatar called Thirubajan Singh. Correct. Okay, where Tiruvallur is a very, very famous and an amazing poet. He's written a lot of Chota Chota Jo. I mean, I don't know what you say that in Hindi. Shairi, yeah? शायरी नहीं होगा वो उनके
आई डोंट नो, जो वर्ड्स टू इंस्पायर, राइट? वर्ड्स टू इंस्पायर, ये जो आगे का ज़माने के लिए बहुत सारे चीज़ें ऐसी छुपा हुआ है, मतलब शायरी नहीं है वो, मतलब प्रवचन टाइप हो गया जैसे, हो सकता है। बट कमिंग बैक टू दैट फ्लिप साइड, आपका ये जो स्पिरिचुअलिटी है सीएसके खेलने की वजह से, वो अवतार लेने की वजह से आया और नहीं, कैसे नहीं, आया, आप नहीं, कैसे नहीं। पहुंचा इधर, वो बताओ। नहीं नहीं, मैं एम गॉड फेयरिंग मैन। मैं भगवान में बहुत ज़्यादा यकीन रखता हूँ। आई लॉस्ट माई डैड वेरी अर्ली व्हेन आई वाज ओनली इन माई 18-19s। तो 18-19 साल का बच्चा कुछ भी नहीं होता है, और फॉर मी माई डैड वॉज एवरीथिंग। आज भी हैं वो, मतलब मेरे अगर कोई ज़िंदगी के उद्देश्य हैं, कोई हीरो हैं, तो वो मेरे डैड हैं। सो व्हेन ही लेफ्ट अस, यू नो, आई फेल्ट कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बट देन उसके बाद मेरा भगवान की तरफ इतना ज़्यादा लग गया ना ध्यान, कि सिर्फ़ और सिर्फ मुझे एक ताकत जो थी वही बचा के रख सकती थी, कि जो भगवान। मैं बहुत ज़्यादा इस स्पिरिचुअलिटी वाले मोड में चला गया, वहाँ भगवान को याद करना, बोलना कि अब मेरा भगवान तो चला गया, बट असल भगवान जो है अब आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि आई फील मदर एंड फादर दे आर ऑल्सो लाइक गॉड। वी हैव नॉट सीन गॉड, किसी ने देखा नहीं, बट माँ बाप से बड़ा भगवान कोई हो नहीं सकता। तो मेरे लिए मेरे भगवान मेरे माता पिता ही हैं। और जब मेरे फादर नहीं रहे तो फिर मैंने बड़े भगवान की तरफ हाथ किया कि नाउ प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ मी। सो उन्होंने बहुत ध्यान रखा मेरा। सो मैं भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। एनी थिंग हैपन्स टू मी, गुड और बैड, बैड तो होता नहीं है, ये हम मान लेते हैं, ये सारी सिचुएशनल चीज़ें हैं। बैड होता नहीं है, हमें लगता है उस सिचुएशन पे उस टाइम पे बैड हो रहा है, बट यू नेवर नो, उसके रंग तो बहुत न्यारे हैं। तो वो जानता है कब किसको कब कितना देना है। What was it like being in a family, suddenly having to head the family, become the head of the family with sisters, with mother? How was that? सडनली मुझे लगा दैट मैं अपने ना वो बिल्कुल उस जोन में था कि जहाँ एक यंगस्टर होता है 18-19 साल में, हैविंग फन, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं घर की कि कुछ करना है, सिर्फ एक ही चीज़ थी कि कुछ बनना है, क्रिकेटर बनना है। पर सडनली जब फादर साहब चले गए तो अब सारा का सारा जो था मेरे सर पे आ गया था कि अब मैं क्या करूँगा। और मुझे कुछ नहीं आता था सिवाय क्रिकेट खेलने के। मेरे को आज भी कुछ नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा बहुत जो मैं क्रिकेट खेला हूँ उतना ही आता था, और वो भी खिलाने वाला ऊपर वाला ताकत उसकी। तो हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे थे। तो वो टाइम जो था वो बड़ा मुश्किल टाइम था। यू नो, आई डिडंट नो व्हाट टू डू, हू टू गो, एंड यू नो क्या क्या नहीं हुआ। यू नो, हमारे पास पैसे नहीं थे, मेरा घर गिरवी था, और जितने पैसे मैंने क्रिकेट से कमाए थे वो सारे वहाँ दे के घर छुड़वाना पड़ा। सो आई हैव सीन पीपल यू नो टर्निंग यू नो देयर बैक्स। तो बड़ा जब मुश्किल हमको समय कुछ था। चाहिए, नहीं आ रहे थे वैसा। हाँ, तो मतलब जहाँ जहाँ से सपोर्ट चाहिए थी, किसी ह्यूमन ने सपोर्ट नहीं करी, किसी ने भी नहीं। सो इट वाज जस्ट मी, माय फैमिली, माय सिस्टर्स, माय मदर, दैट्स इट। और कोई साथ में खड़ा नहीं था। और भगवान सिर्फ एक, जो सबका एक है। तो मुझे लगता है कि अगर वो हाथ नहीं पकड़ते, वो साथ नहीं देते, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। सो इसलिए मैंने ह्यूमंस पे ना, भगवान खुद नहीं आते हैं, बस उनके ह्यूमन के मैसेंजर्स, रूप में आता है ना। उनके मैसेंजर्स हैं, उनके मैसेजेस आते हैं। यू नीड टू फाइंड, यू नो, भगवान किस किस में भी हो सकता है। हर कण कण में भगवान है। यू नो, एवरीवन सेज कि हर जगह भगवान है, आप याद करो। So who was your भगवान in cricket? How did that turnaround happen? इन क्रिकेट, कैसे लगा? इन क्रिकेट मेरा भगवान, मैं तो कहूँगा मेरे लिए, फॉर माई सिस्टर्स, माई फादर, दे वर माई रियल गॉड्स। माई मदर, यू नो, द काइंड ऑफ हार्डशिप दे हैव गॉन थ्रू, यू नो, और जो प्रेयर्स मेरे लिए की हैं, यू नो, उन प्रेयर्स की वजह से मैं बना हूँ। यू नो, आई हैव डन व्हाट एवर आई कुड डू फ्रॉम माई साइड ऑन द फील्ड, जाना, प्रैक्टिस करना, वो सब। बट विदाउट प्रेयर्स, विदाउट विशेस, नथिंग मूव्स। यू नो, उसकी मालिक की मर्ज़ी हो तब एवरीथिंग मूव्स, नहीं तो कुछ नहीं मूव करता। यू नो, वी आर नॉट इवन श्योर कि नेक्स्ट हमें सांस आएगा या नहीं। यू नो, एवरीथिंग इज़ इन हिज हैंड। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर उसके ऊपर यकीन रख लो, उसको डोर पकड़ा दो, तो एवरीथिंग इज़ फाइन। यू सी ए किड, यू नो, इफ़ ही वांट्स टू क्रॉस दिस रोड आउटसाइड, तो वो उसका फादर साथ में है ना, तो बड़े आराम से कर लेगा, हाथ पकड़ेगा, चले जाएगा। बट अगर उसको अकेले जाना है,
तो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इतनी ट्रैफिक है। बट जब उसने अपना सब कुछ ही फादर की उंगली पकड़ के छोड़ दिया, अब तो फादर ही लुक आफ्टर करेगा ना। सो मैंने बस भगवान का हाथ पकड़ लिया था। नाउ इट्स योर विश, वेर एवर यू टेक मी, आई एम विद यू, आई एम योर सन, सो टेक मी वेर एवर यू वॉन्ट टू। सो व्हेन यू लीव एवरीथिंग ऑन हिम, यू नो, वो फिर सब कुछ अच्छा ही होता है, कुछ ख़राब नहीं होता है। डेफिनेटली कुछ खराब नहीं हुआ था बिकॉज यू इंस्पायर्ड अ जनरेशन टू कम। हम हर एक एवरी इवेंट दैट हैपेंड इन योर लाइफ वाज एन इंस्पिरेशन नॉट ओनली फॉर यू, फॉर सेवरल अदर्स इंक्लूडिंग मी सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था बजूपा, मतलब आई समहाउ इट इज़ वेरी डिफरेंट डिस्टिंक्ट टू आवर कैरेक्टर्स। ऑब्वियसली आई थिंक ये पॉडकास्ट होने के बाद आपको सब तिरभजन सिंह बुलाने लगेंगे। तिरभजन सिंह 100%, क्योंकि इतना स्पिरिचुअल लगता है कि but I think they say it right, when you reach the 40s and 50s you do seek spirituality. It happens in everybody's life and it's good, it's nice to see this version of yours. मेरा एक सवाल था कि आपका जो ये एंगर है फील्ड में जो निकाल के लेके आते हो, जिसके लोगों के साथ लड़ते थे आप, what was it? Was it just cricket और instinctive? वो कहाँ से आया था? वो इंस्टिंक्टिव ही था और somehow मुझे लगता था कि when I had that kind of body language, I played my best cricket. Right. I was one of those guys who didn't wanted to give up at any point of time and wanted to fight it out, not for myself but for the team. That's a larger picture. So I was there to play the game and I'll play to win, not to do anything else. For me, winning was everything. So वो instinctive था। वो जो हरभजन सिंह आपने खेलते हुए देखा, वो टोटली डिफरेंट हरभजन सिंह था। और जो मैं मैदान के बाहर, इफ़ यू आस्क एनी ऑफ नहीं बहुत कहानियाँ सुने मैंने। माई कोलीग, they'll say he was probably the most funniest prankster or whatever way they want to describe. बट जब मैं फील्ड पे उतरता था, सडनली समटाइम मुझे भी लगता था कि यार बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा हूँ। व्हेन आई यूज्ड टू वॉच माई हाईलाइट्स, मैंने कहा यार इतना गुस्सा कर दिया। तो बट that was me. But different characters on and off the field. Two moments, one of anger and one was really funny. When I associated myself with Harbhajan Singh and when I saw Harbhajan Singh, I used to always think of these celebrations, the punch-aways and then send-offs and all that. And there was one funny incident, जिसके बारे में I will ask you. But first we'll start with one of those aggressive step-ups. Your dismissal of Ricky Ponting in Sharjah. Yeah. The battle between Ricky Ponting and Harbhajan Singh is one for the Hall of Fame. Actually, बहुत सारे लोगों को हॉल ऑफ फेम में इंडेक्ट कर देते हैं ना। आई एम अगेंस्ट इट। यू शुड पुट दीज क्रिकेटिंग बैटल्स इज हॉल ऑफ फेम। ओके, सो दैट बैटल स्टार्टेड दैट। Actually, that's a very good point. It is those moments should be going in that the should be Hall of Fame. Yes, correct. Not the person. Every person have somewhere or the other way. They have done well in their life or in cricket. So that means everybody will be in Hall of Fame. But there are some moments, only some moments, which are like highlighted. Everyone knows about it, and those are the moments should be in Hall of Fame. I completely agree with Both you. of you are Hall of Famers in my head. That's not a question. But what was that moment like in Sharjah? What did you tell him, and what did he tell you? Do I have to say what did I tell him? We can put deep on it, but you can try and wax some. Well, what happened was those days my English. Did you guys play before that? Like No, never played against each other. It was just I heard that word from a lot of our senior players' mouth. So, F word was I thought it was very cool. So, he hit me for a 6, then hit me for a boundary through covers, and the next ball he again stepped out and I was dusra. He completely missed it and got out. And the moment he got out, I was going through there and I was... and I didn't know the meaning of it, to be honest. So, I was just trying to be cool and of course was aggressive. And he charged towards me. I said, what happened to him, man? And suddenly I was on the back foot. I said, boss, ye marega, pakadega to marega. But anyhow, that moment happened and I was still, in my own zone, playing my first, second or third game for India. And doing really well in that particular series. And suddenly match referee called me after the game. So Azhar was next to me. And luckily, Talat Ali was a match referee who speak Hindi. And he asked me, Beta, do you know what you said to him? I said, Haji sir, मालूम है. But I don't know the meaning, sir. But मालूम है क्या बोला है, but meaning नहीं मालूम है.
तो अजहर भाई ने मेरे तो जान दो, छोड़ दो इसको, जान दो सर, छोटा है, सीख जाएगा, तो करके बोल दिया. So I thought it was okay, the game is over, everything is okay. I said sorry, and I told him, I don't know the meaning of it. So but जैसे ही वहाँ से निकले हैं, वो एक चिट्ठी मेरे हाथ में दे दी, 100% मैच फीस एंड नेक्स्ट मैच बैन. आई सेड यार मैंने तो सब कुछ बोल दिया, सॉरी भी बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, एंड आई टोल्ड हिम क्लियरली, आई डिड माफ़ी मांग ली, मीनिंग भी नहीं मालूम है. और यार मैंने कहा यार इतना बड़ा उसका मुझे इतना बड़ा चिट्ठा दे दिया सिर्फ ये बोलने के लिए. यार फिर जाके मतलब सुना है कि नहीं आपने? हाँ मतलब फिर मैं सुना, मैंने कहा भैया इतना मतलब कॉमन अगर बोल रहे हो तो मुझे लगा कुछ कूल होगा. जब पता लगा मैंने कहा यार ये तो मेरे अगर फादर ने देख लिया तो मैं घर कैसे जाऊंगा. तो एनीवेज वन ऑफ दोज मोमेंट ऑब्वियसली जो आज भी कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पे घूम के आ जाती है वो मोमेंट, कभी ना कभी वो देखी जाती है. एंड आई डोंट वांट माय किड्स टू सी दैट. मेरे बच्चे देखेंगे पापा व्हाट वर्ड डिड यू से देयर, तो आई डोंट वांट माय डॉटर टू सी दैट फॉर श्योर. That's an interesting one because we all have to be aware of what our kids will have to see of us, our version. So that's one of those moments. But the next moment when I said it was very funny was when you got Ricky Ponting out. Was it in Sydney? Caught at Silly Point. Yeah, Silly Point. And I thought you just kept running. Yeah, and you didn't know what to do and you rolled correct, over. Correct. I didn't know what to do. I said, what do I do next? Because I almost ran towards the balcony where we used to sit and watch the game. So I was so close to it. I said, what do I do next? Then I started rolling. And after one roll, and suddenly, because I was in that momentum, that next roll happened. And the next roll happened. I said, how do I stop now? After 3 roll, I stopped. Then I checked my pagdi and all, if everything is okay. Then that was a crazy celebration. So that's me. When I was playing, I was a bit crazy. In fact, you mentioned in the last one where Azharuddin was there with you when you were speaking to the match referee. You played with several captains. Saurav Ganguly, जिसके बारे में obviously I think you had a lot of good things to say. Rahul Dravid, Mohammad Azharuddin, Anil Kumble, Tendulkar, Yeah. Kapil Dev. No. Bishan Singh Bedi. अरे बाप रे कहाँ ले गया. अच्छी वाडेकर It was supposed to be funny. So आप ये इतने सारे captains के साथ खेला है. Obviously, I'm sure You didn't mention Dhoni. You didn't mention Virat. Their fans will go Dhoni, after Virat. us. I mean, obviously, यार, their उसका- fan will go after us. नहीं, otherwise. social media. If you have to live on the basis of what social media is saying, then you can't live today. So No, that I'm is just saying. No. I mean, it's not okay. Dhoni and Virat. Obviously, the choice is yours to talk about who you want to. Everybody has their own methods. In fact, you played under Rohit also in the IPL. At Mumbai Indians. In the Yeah, IPL. yeah. So all these captains put together bring different leadership qualities. Correct. What did they bring to you? How different were they towards you in terms of their styles? I think I've spoken a lot about Dada. He was someone. Why do you have so much praise for Dada? What was it? Was it that Because, father figure that you saw in him, or See, he was like an elder brother when we were growing up playing cricket, and you needed someone to be there to support you, not to give you anything, extraordinary. That freedom just to go out there to express yourself, and he'll stand behind you. He'll say, I am there to support you, whatever you do on the field to win the game for India. And Dada was that kind of a guy. He had a lot of conversations, which obviously on the field, off the field, and he kind of mentored me, how to go about this game and how to get better at it, and what do I need to keep doing to get better at it, and of course to stay in the competition. So Dada for me was one of those guys, जो हार नहीं मानता था, और वो वही चाहता था अपने जो लड़कों से भी कि लड़ना है. And you want a leader who, lead from the front and show us how it's done. Not watching it from the behind and saying कि ठीक है ये चल रहा है. So Dada used to do that. Dada used to fight. Dada used to do every possible thing to win a game for India. And he was, someone at that point of time, we were all young. You needed that hand on your shoulder. मैं हूँ ना बड़ा भाई. So for me, that's what was the biggest thing. The support system
You know, when you have senior like Dada, Anil Bhai, Rahul, great Tendulkar, to Javagal Srinath, a lot of people don't talk about him. You know, he was too good with us, all the youngsters. You know, he was someone who made us comfortable in the dressing room. He made us, you know, feel that we are part of the system, part of this team, and you know, that's what you want as a player. When you feel I own this dressing room, I own this place, you know, then you start playing well. And of course, that's a matter with you also. वो ड्रेसिंग रूम में डर के अगर रहेंगे तो नहीं हो पाएगा. एनवायरनमेंट कहते हैं सब लोग, हाउ द एनवायरनमेंट इज. बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट था कि सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टॉक अबाउट दीज ग्रेट गाइस. यू नो, गांगुली हैं या फिर जितने भी मैंने नाम लिए. यू नो, द सपोर्ट सिस्टम वाज रियली गुड फॉर ऑल ऑफ अस. Right, okay. Now you mentioned about Anil Bhai. I'll be failing in my duties if I didn't ask about him. My experience of Anil Bhai was method. ऐसे एक सीधे रास्ता पे अगर if he had drawn a line, he would just go on that. What was it being the partner for Anil Bhai? What was it playing under the captain Anil Bhai? How was your relationship with him? See, I played with Anil Bhai a long back when we were playing in Chennai for Camp Last. Oh, okay. Yeah. Jolly Rovers. So I think Camp Last, right? Yeah. Yeah, I played with him there. He was my first captain over there. And Anil Kumble, I always says, even though, you know, a lot of people say that Ashwin have taken a lot of wickets, you have taken Kapil Paji, but I believe that, you know, he was probably the biggest match winner India have ever produced, you know, and the biggest fighter on the field. He was someone that we all used to look up to him. And you know, you rightly said, you know, he's got method, you know, this is how it's done and I will do it. He will not rely on others to do it. He was also a leader that, you know, he'll show us the way, this is how it's done. And whatever little cricket I have played, you know, with him and whatever little I have achieved while we were playing together, you know, I think a lot of credit must go to him also for, you know, guiding me, giving me the directions to do the right way and setting the field accordingly. ऐसा कुछ कहानी है जिसमें तुम लोग फील्ड में आपस में ऐसे डिस्कस किया? और बहुत बार जब मैच चल रहा है, कोई बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तब वो क्या करना है, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट. पिच अच्छी है, फर्स्ट डे की पिच है, टॉस हार गए हैं और कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, व्हाट इज़ द फील्ड साइड, कि क्या फील्ड होनी चाहिए. और बहुत कहानियाँ ऐसे हैं जब हमने सडनली कुछ नहीं हो रहा है, बट सडनली विल मेक थिंग्स हैपन बाय डूइंग द राइट थिंग्स. कि टाइट रखना है, फील्ड प्लेसमेंट वैसी नहीं रखनी है अननेसेसरली बहुत ज़्यादा अटैकिंग है. नहीं तो पहले ज़माने में क्या था, स्पिनर आया तो भाई शॉर्ट लेग होना ही चाहिए. क्यों होना चाहिए? इफ़ यू आर थिंकिंग द बॉल इज़ नॉट गोना गो देयर, व्हाई कीप इट, है ना. सिली पॉइंट होना चाहिए, स्लिप होना चाहिए. इफ़ यू आर थिंकिंग कि वो भाई वहाँ जाएगा, देन यू कीप इट. बट इफ़ यू आर सेइंग कि यार रख लो यार, देखते हैं जैसे ऑप्टिकल के लिए. बट यू कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट प्लेस, नो बजुबा, बिकॉज द रीजन आई एम आस्किंग दिस इज यू कम फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम वेयर मिस्टर बिशन सिंह बेदी had come. To a large extent, he was a big instrumental force in many Punjab cricketers. Of course, the late Bishan Singh Bedi now. जिस वो हमेशा कहता था कि you have to have silly point short leg. So there are a lot of India has a rich history of spin. So when the spin quartet finished, स्पिनर के ऊपर सरमन बहुत रहता है, ऐसा रखना है, फील्ड ऐसे ही रखना है, पीछे नहीं भेजना है मिड ऑन मिड ऑफ को. क्यों नहीं भेजना है? No, I'm saying that was generally how spin was perceived. To break that and do this, did you have any interactions with Bedi Saab and how was? नहीं, बेदी सर के साथ मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट. और आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न मुझे लगता था कि शायद मुझे वो उतना पसंद भी नहीं करते हैं. Okay. बट ये मेरी सोच हो सकती है. मैं यू नो ह्यूज एडमायरर ऑफ हिज, और मेरे बड़े हैं, बहुत इज़्ज़त करता हूँ मैं उनकी. और मैं जब मिलता था मैं पाँव छू के मिलता था उनका. बट मुझे कभी कभार ऐसा लगता था कि शायद मेरी बॉलिंग से ये खुश नहीं है, क्योंकि जैसे उनको चाहिए वो फ्लाइट चाहिए. मैं थोड़ा सा, मेरी बॉल में उतनी फ्लाइट नहीं थी, तेजी थी, बट यू डोंट रियली हैव टू यू नो फ्लाइट द बॉल एवरी टाइम टू गेट द बैट्समैन आउट. इट इज़ यू नो वेयर यू आर पिचिंग एंड हाउ यू आर मेकिंग हिम प्ले, दैट्स व्हाट मैटर. यू नो, वो मेरी सोच है. मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सही है. But flight is a misconception in many which ways. The taller you are, the flight has to be lesser, and sometimes
लोगों मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं ये चीज़, बट डिपेंड करता है ना कैसे कौन खेल रहा है. यू नो, इफ़ यू आर गिविंग हिम टाइम, इफ़ ही इज़ स्टेपिंग आउट, देन यू हैव टू वेरी. यू नो, एज ए स्पिनर हम लोग को मालूम है कि कैसे बैट्समैन को खिलाना है. यू नो, इफ़ ही इज़ मेकिंग अस बॉल देयर वेयर ही वांट्स अस टू बॉल, देन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. यू नो, वी हैव टू पुट आवर ओन माइंड कि वो कवर ड्राइव करा के बोल्ड करना है. वो ओल्ड थ्योरीज हैं. कवर ड्राइव कराओ, बोल्ड करो. ऑफ स्पिनर शुड बी हिटिंग आउटसाइड ऑफ द स्टम्प्स एंड देन स्पिनिंग इट, तो अंदर आए वहाँ से, स्पिन हो, बोल्ड हो. तो वो सारी थ्योरीज जो थी वो तो मेरे दिमाग से मैंने बाहर कर दी थी. येस, वी प्रैक्टिस्ड thousands of balls, lakhs of balls जब सिंगल विकेट करते हैं. बट दैट्स वेयर अनिल कुंबले केम इन टू द गेम व्हेन ही टोल्ड मी कि कब, कैसे, किस दिन क्या फील्ड होनी चाहिए. पहले दिन की टेस्ट मैच की फील्ड क्या है, दूसरे दिन की क्या है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये जितना आप खेलते हो तभी सीखते हो. देन आई वाज सो लकी कि मेरे साथ एक ऐसा स्पिनर था जो ऑलरेडी हर मैच में इंडिया को जिता रहा था. तो उसके साथ खेल के मुझे मैं ऑटोमेटिकली जो सीख रहा था देख के वो तो था ही, बट साथ साथ में जब बैठ के उनसे बात होती थी कि अनिल भाई ये क्या करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, देन मेरा जो रफ्तार था ना वो बढ़ गया सीखने का. जो मैंने 5 साल में सीखना था तो मैंने वो लकीली वो साल 1.5 साल में सीख ली वो सारी चीज़ें. बट यू स्टिल कंटिन्यू टू लर्न टिल द टाइम यू आर प्लेइंग. एंड इवन टुडे वी आर इनटू दिस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम एंड वी आर लर्निंग दिस गेम. You know, everything is happening so fast. Every day, some players are playing different shots in shorter format of the game. You know, it's so sometime कि हम सोचते हैं कि यार ये कैसे हो सकता, वो कैसे हो सकता. इट्स अ लर्निंग फॉर अस. इवन टुडे वी आर लर्निंग. बट अनिल भाई थे तो वो सारी चीज़ें ना बड़ी तेज़ी से मैं सीख गया. और वो जो शॉर्ट लेग, सिली पॉइंट, स्लिप रखना वो ज़रूरी नहीं है. आई बिलीव वो जो कंडीशंस को देखो, बैट्समैन कैसे कंडीशंस आर किंग. या अगर वो सब आपके फेवरेबल हैं तो देन यू कीप देम, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग दैट स्पेस. As I'm looking at you and the way you're talking, there are several questions I need to address, but it is all digressing. I'd be failing in my duties if I didn't talk to you about the 2001 series. But उसके पहले थोड़ा अनिल भाई का कहानी है, थोड़ा आगे बढ़ने का ज़माना है. अनिल भाई was captain in Australia. There was this monkey gate incident that happened. How did Anil bhai handle it? How did you guys handle it? But हुआ क्या था? जैसे कोर्ट के केस के जैसा हुआ था, कैसे हुआ था? कोर्ट के केस की तरह ही था वो. एंड मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया है. और ऑनेस्टली वो लैंग्वेज बैरियर था मेरे लिए, अंग्रेज़ी, उनके लिए पंजाबी. अब पंजाबी आदमी की लड़ाई होगी तो किसी को मंकी नहीं बोलेगा. करेक्ट? समझ गया. I know what the word could have been. I know what the... So what I said was, so when you say such word and सामने वाला कैसे परसीव कर रहा है, we don't know ना. अब उसको लगा कि मैंने बोला, और इफ़ यू नो फास्ट फॉरवर्ड इट, वो कोई वहाँ का बंदा कैसे उसको परसीव करेगा. उसको वो लगा वर्ड मैंने ये बोला, ना लगाना है बस बीच में. हाँ, है ना. अब वो इतनी तेज़ी से कॉन्वर्सेशन चल रही है तो उसमें कहाँ वो उसको न लगाना है या क लगाना है. उसको तो वही सुनेगा जो वो सुनना चाहे. So there was a guy, Savanan, who used to help me during my CSK days. I wanted to get connected with people out there. You know, वो connection India के लिए खेल के तो है, but when you're playing for the Yellow Army, you know, you have to be part of that. You know, और उनके लिए the best. सरवणन कौन सा सरवणन है? वो जो फैन है, सुपर फैन है, वही है या दूसरा? वो जो बैट डॉक्टर कहते हैं. अरे कितने सर्वनन होंगे वहाँ पे, है ना. बहुत सारे सर्वनन हैं. बट दिस गाय वाज अ जेम. यू नो, ही यूज्ड टू कम अप टू मी एंड से, पाजी आप इसमें लिखो. सो आप किसी को भी ना जीत सकते हो तो अपनी भाषा से जीत सकते हो, है ना. या खाना खिला के जीत सकते हो या भाषा से. सो आई, यू नो, वॉट एवर आई वॉन्टेड टू से टू देम इन से हिंदी और इंग्लिश, यू नो, ही यूज्ड टू राइट फॉर मी इन तमिल एंड आई यूज्ड टू पुट इट आउट देयर एंड क्रेडिट टू हिम. यू नो, ही रोट इट सो वेल. So it just becomes a, you know, very big hit. Suddenly वो news दिखा रही है, ये दिखा रही है. I say what happened there? And then someone made a story. वो YouTube का एक वो बना दिया. नहीं, एक कमेंटेटर है. आज कमेंटेटर नहीं है, वो एक्टर है. वो कमेंट्री करता था तमिल में.
उसका नाम है आरजे बालाजी, आपको हाँ, सुना ही of होगा, course, आपने of देखा course. होगा। Yeah, I've उसने seen. एक बार आप बॉलिंग के लिए आया था, मैं तमिल में देखता था मैच, क्योंकि बहुत फनी लगता है, कभी वो बात करता है ना, बहुत फनी लगता है। उसने बोला तिरुवल्लुवर आया है बॉलिंग डालने के लिए। तभी मुझे लगा ये क्या है। फिर मैं जाके, तभी मुझे नहीं पता था कि आप तमिल में ट्वीट कर रहे थे, फिर जाके मैं ट्विटर में देखा था, क्योंकि आईपीएल का समय अब जितना दूर रहोगे ट्विटर से उतना बेहतर है। थोड़ा सा हम सीएसके से बाहर निकले वापस। दिस इज लाइक वी आर पुटिंग ऑन डिफरेंट क्लोथिंग ऑल द टाइम। Anil Kumble wasn't there. Harbhajan Singh had to lead the attack. 2001 टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। स्टीव वॉ ने कहा था कि दिस इज द फाइनल फ्रंटियर। इंडिया में खेलना बहुत मुश्किल था तब, ऑब्वियसली विकेट्स में और भी स्पीड थे शायद इंडिया का विकेट्स में। व्हाट वाज इट गोइंग इनटू द सीरीज एज अ लीड स्पिनर? हाउ डिड यू फील एनी प्रेशर? हाउ वाज दैट सीरीज एंड ऑल? See, for me, that series was a make or break. You know, before that series, lot of things happened. I was checked out of the National Cricket Academy for different reasons, which I'll obviously explain in my book in detail what all आप happened. बुक लिख रहे हो आप? बुक मैं लिख रहा हूँ, बट मेरी कहानी पूरी नहीं हो रही है ना। तो अब बहुत तक सारी कहानी है। बहुत सारी कहानियाँ भी है, और somehow I feel that you know कि that I want to write an honest kind of a book, जो अगासी की बुक है ना, ओपन बुक, वैसा कि मतलब मैं ख़राब कितना हूँ, मैं अच्छा कितना हूँ, और लोग मेरे से कनेक्ट करें कि दिस इज़ व्हाट इज़ मी। अच्छा है बुरा है आप जज करो, बट दिस इज़ व्हाट इज़ मी। और उसमें आई डोंट वांट टू बी जस्ट आई हैव डन दिस, डोंट जज द बुक बाय द कवर, इतना ही है। सो एक्चुअली ये क्यों हो जाता है यार बजूपा? आपसे पूछना था, आपसे बेहतर कोई नहीं रहेगा इसको आंसर जवाब देने के लिए। when they see you play on the field, they decide that's who you are. मतलब आप किसी को गाली दिया फील्ड में, या आप किसी से लड़ गया, या आप थोड़ा एग्रेसिव है, लोगों जज कर देते हैं आप ऐसे ही कैरेक्टर है। he must be like that. He is short tempered, he is very angry all the time. So जैसे फिल्म में I'll tell you, रंजीत करके एक गुंडा था, आज भी हैं वो, रंजीत हैं। प्राण एक हिंदी फिल्म में, हर फिल्म में होते थे। अमजद खान, गब्बर सिंह, हाँ जी। उनकी वो परसेप्शन ऐसे बन गई कि वो रियल लाइफ में वो गब्बर सिंह ही है। सो जा बेटे नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। मतलब इन रियल लाइफ दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर जस्ट प्लेइंग द कैरेक्टर। ऑब्वियसली वी आर नॉट प्लेइंग द कैरेक्टर्स, बट व्हेन वी आर ऑन द फील्ड वी आर in our different zone altogether. Everything is online for us. Not lot of people understand this कि what it takes to be a cricketer or to be a sportsman. और एक स्पोर्ट्समैन जो बाहर दिखता है उसके अंदर वो आपस में अंदर कितना लड़ता है रोज अपने आप से, क्योंकि सबसे बड़ा क्रिटिक वो खुद का अपना आप ही होता है। कभी वो अपने आप को ये नहीं कहता कि यार मैंने अच्छा किया तो मैं ठीक किया यार आज, उसमें भी वो ढूंढता है कि यार ये हो सकता था। सो आई फील लोगों में ना वो परसेप्शन बन जाती है जो वो देखते हैं। अब जितेंद्र, धर्मेंद्र, वो हीरो वाली परसेप्शन, रजनीकांत सर, धर्मेंद्र, सारे ये हीरो वाली परसेप्शन। और जैसे ही आप शक्ति कपूर को देखोगे, यार ये तो कॉमेडियन है, मतलब वो उसकी परसेप्शन वैसी बना दी गई है। बट ऑब्वियसली ही ऑल्सो लुक्ड रियली गुड, मतलब उनको कभी हीरो के रोल में आए नहीं, वो बात अलग है। बट दैट्स व्हाट the life goes. But all I want to tell people, as you rightly mentioned, don't judge the book by its covers, है ना। उनके कवर से उसको जज मत करो बुक को, क्योंकि आजकल का ज़माने में ना बहुत ज़रूरी है बोलने का, क्योंकि हम अगर ऑनलाइन मीडिया में न्यूज़ पढ़ते हैं वो पूरा क्लिक बेट कहता है, हेडलाइंस आ जाता है, सब लोग हेडलाइंस पढ़ के आपको एडवाइस दे देते हैं। करेक्ट। अंदर पढ़ते भी नहीं है, अंदर कुछ होता भी नहीं है, अंदर कुछ होता भी नहीं है। आप थोड़ा केयरफुली बात करो यार, आप भी आज कमेंटेटर बन चुका है। यू आर आल्सो अ कमेंटेटर गिविंग ओपिनियंस। कमेंटेटर्स का काम भी बहुत चले जाता है। I know lot of things we say in a different way, but it is perceived or taken in a different way. And there are people, वो गिद्ध होती है ना, गिद्ध ऐसे देखते रहते हैं कि ये आया शिकार, गलती हो, हाँ ये शिकार आया। Anything you say, within next 3 minutes, 4 minutes, you are out there trending, for what? You said this, है मैंने बोला था ये, अरे मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला, मैंने इस तरीके से बोला है। बट उनको समझाने जाएंगे तो वो और खड़े हो जाएंगे। सो इसलिए आपका मन साफ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या है, एंड यू शुड बी, मतलब इतना ओपन होना चाहिए कि इफ़ यू मेड ए मिस्टेक से सॉरी यार, गलती होगी भाई, मैं इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, गलती होती है और हमसे नहीं होगी तो किससे होगी। वी ऑल मेक मिस्टेक एंड वी ऑल लर्न, वी ट्राई नॉट टू रिपीट इट अगेन, सिंपल इज दैट।
you know, and that's the only thing you can do. You know, Ash, you are not right, I am not right, और neither you are wrong. तो हर बंदे का अपना अपना वो डिसीजन है, परसीव कैसे कर रहे हैं वो बात, सामने वाले लोग, वो उनका एक वो थॉट प्रोसेस है उस टाइम पे. उनको लगा, अब तुमने मुझे कोई बात सुनाई कि यहाँ पे ना जूस बड़ा अच्छा मिलता है, मेरे दिमाग में वो लग गया. एक बंदे ने वो सुना दी, बहुत बेकार जूस है, कल मेरा पेट ख़राब हो गया. अब मेरे दिमाग में जो बात सुनी है वो रह गई है. अब मैंने जो सुनी मेरे दिमाग में वो वैसा रिएक्ट करूँगा. मेरे को किसी ने पूछा जूस कैसा मिलता है, यार ओके ध्यान से पीना. अब उसका मतलब क्या है कि मत पीऊँ या ना पीऊँ. सो आई डोंट नो, इट इज़ मतलब सो डिफ़िकल्ट नाउ डेज. यू नो, पीपल डोंट लेट यू स्पीक. यू नो, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्चुअली मेरे से हमारा जैसे वो कहानियाँ बताए, इतना लंबा कहानी नहीं, छोटा कहानी है. लोग हमेशा बोलते हैं कि मैं किसी से आई डोंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी. अगर आप मुझे आज गाली दिया या आप मेरे ऊपर कुछ गलत बोल दिया, आई विल नॉट होल्ड इट एट ऑल अगेंस्ट यू. क्योंकि मेरा है कि लाइफ में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है. बिल्कुल. क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो आपका ओपिनियन है, बट आई फाइंड इट वेरी फनी. क्योंकि आप आज कमेंटेटर हो, क्रिकेट खत्म किया आपने, अभी कमेंट्री कर रहे हो, एक्सपर्ट हो गया. बहुत सारे इन द पास्ट commentators have lost their jobs on speaking about certain people. ऐसा होता है क्या आपका इंडस्ट्री में? आप ये कमेंटेटर सामने से आप देख रहे हो? देखो, ये कुछ लोग जो हैं वो जिनकी जॉब गई थी, उनमें से कुछ लोगों को तो मैं जानता भी हूँ. हाँ, किनके कारण गई थी वो मैं जानता हूँ. कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो नहीं, बात. बट मैं एक्चुअली द पॉइंट इज, हम क्रिकेटर है, मैं अभी तक क्रिकेटर हूँ, तो थोड़ा बहुत खेल रहा हूँ. आप अभी क्रिकेट खेलते नहीं हो, पास्ट क्रिकेटर हो. सो हाउ डिड यू फील व्हेन यू आर अ क्रिकेटर? अगर कोई आपके ऊपर क्रिटिसिज्म रखा है, अगर आपके पास पावर है, आप निकालने के लिए किसी का सोचा है? आपने सोचा है आपकी जिंदगी में? नहीं, मेरे पास तो कभी उतनी पावर थी भी नहीं, और मैं वैसा आदमी भी नहीं था कि मैं किसी को निकाल दूं. और जब यश, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे लिए ना बहुत लोगों ने, मुझे लगता था, ख़राब लिख रहे हैं. क्योंकि वो मेरा जो परफॉर्मेंस था वो उस तरीके से देख रहे थे. ठीक है, वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था. एंड क्रिकेट उस तरीके से देखो, जो देख रहे हो वो लिखो, जो देख रहे हो वो बोलो, तो वो तो ठीक है. बट उसमें अगर मसाला लगाने चले जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं वो हर प्लेयर को चुभता है. यू नो, मुझे बड़ा हर्ट करता था कि मेरे लिए ये कुछ लोग हैं जो आप गिन के रखोगे हाथ में. हाँ, मुझे पता है कि ये लोग मेरे लिए ख़राब बोलते हैं. और वो आर्टिकल्स भी उनके देखोगे ना, तो वहाँ भी मसाला लगाया होता था, कि मिर्च लगती थी. ऐसा पकड़ लो, एक बंदा ने ऐसा लिख लिया, दूसरे बार उसको देख रहे हो आप, उससे क्या बात करते हो या ऐसी? मैं नहीं करता था. दोज डेज आई वाज बिट क्रेजी. मैं थोड़ा अलग तरीके से चलता था, खुंदक वाला बंदा था कि चल तू अपना देख, मैं अपना देखता हूँ. और इधर रखता था मैं खुंदक. हाँ, कि दिखाऊंगा तुझे, करके दिखाऊंगा. उसको कुछ बोलूँगा नहीं, तो दिखाऊंगा. हाँ, अगर उसने कुछ बोला तो उसको मैं करके दिखाता हूँ. हाँ, उसको बता दूंगा भाई तू क्या खेला है, कितना खेला है, कैसे खेला है. वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास भी है. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड आई सी, यार मेरी सोच शायद गलत थी. व्हेन दे आर ऑब्वियसली सिटिंग देयर डूइंग देयर जॉब, व्हाट दे सी, इफ दे आर टॉकिंग राइट विदाउट पुटिंग एनी मिर्च मसाला, इट्स ऑल फाइन. आप किसी को पर्सनल अटैक मत करो. आई फील कि बहुत लोगों ने पर्सनल अटैक किया, वहाँ मुझे गुस्सा चढ़ता था. क्रिकेट के बारे में बात करो यार, बॉलिंग अच्छा नहीं हो रहा, फॉर्म अच्छा नहीं है, आपको सीधा पूछता हूँ, अगर आप ऐसा एक पैनल में बैठकर मैच के बारे में रिव्यू कर रहे हो या कोई प्लेयर के बारे में बात करते हो आप लोग, इट हैपेंस. या मेरे साथ हुआ है. आई हैव बिफोर यू इवन आस्क, मैं शायद क्वेश्चन वो समझ गया हूँ कि यू आर प्लेइंग, आई एम टॉकिंग. इफ यू आर नॉट बॉलिंग वेल ऑन दैट पर्टिकुलर डे, I cannot say he's bowling well but not picking wickets. It's as simple as that. You're not bowling well, and why you're not bowling well, I'll have my own point of view on it. You might not agree as a player कि नहीं ऐसे नहीं, पिच कैसा था, आपको पता भी है, ऊपर बैठ के ऐसा लगता है. मैं कभी किसी को कॉल करके पूछा भी नहीं अभी तक, क्योंकि मेरा दिमाग में आई फील आपका जो घर चलाने के लिए आप जो कमा रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, दैट इज योर जॉब. मेरा जो गेम चल रहा है, यू आर टॉकिंग अबाउट द गेम, दैट इज योर जॉब. यू आर नॉट कमिंग एंड सेइंग बोल लाइक दिस, बैट लाइक दिस. यू आर डूइंग योर जॉब, आई एम डूइंग माइन. सो इसमें गुस्सा आने का कुछ है नहीं. हाँ, नहीं, बट बहुत लोगों को लगता है कि मेरे बारे में ना, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसे बोल दिया.
But if Kohli gets out, I have to say Kohli got out. And if Kohli is not batting well, I have to say कि नहीं यार पैर नहीं चल रहा है. This might be the reason ये पैर नहीं चल रहा है, या बैक एंड अक्रॉस जो भी है, ये ट्रिगर पॉइंट है वो नहीं हो रहा. सो जो हमारे को सुन रहे हैं व्यूअर्स, you know, they need to understand what is happening, why Kohli is not scoring run, or why suddenly Kohli is scoring runs. You know, you have to be sharp enough to understand what is happening. And अपना वहाँ पे ज्ञान देना है ना, जो क्रिकेट खेला है. अब वहाँ पे किसी प्लेयर को बुरा लगने के चांस पूरे हैं, लगेंगे, मुझे भी लगता था. और लेकिन जब मैं किसी प्लेयर को बोलता हूँ ना, कि जाके मिलता हूँ कि यार मेरा कभी कोई एजेंडा ना था ना है, सो प्लीज़ डोंट माइंड वट एवर यू हेयर ऑन एयर, प्लीज़ क्लियर इट विद मी. यू नो मी हाउ गुड और बैड अ पर्सन आई एम. यू कम एंड टॉक टू मी. मेरे को मतलब मैं ग्राउंड में कहीं आपके आजू बाजू नहीं आऊँगा. आई डोंट वांट टू बी इन योर स्पेस, बट डोंट टेक मी यू नो रॉन्ग फॉर व्हाट आई हैव स्पोकन ऑन एयर. कि मैं कभी किसी की शान के नहीं, खिलाफ ऐसा बात आपको नहीं बोलना चाहिए. तब मैं ब्लेजर पहन के माइक पकड़ूंगा ना, मैं दूसरा बंदा हूँ. मैं निकालने के बाद आके बात करो दोस्त की तरह, वैसा बोलना चाहिए आपको. नहीं, मैं उनका दोस्त और वेल विशर हमेशा ही हूँ यार. और वो क्रिकेट खेले ना खेले से, क्रिकेट मेरे लिए ना बहुत, अब मेरा ये ऐसा सोच है कि एक ज़िंदगी का पहलू है. हमें लगता है क्रिकेट ही सब कुछ है. मैंने पहले भी बात करी, क्रिकेट इज़ नॉट एवरीथिंग. इट वाज पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. बट व्हेन यू हैव योर फैमिली, व्हेन यू हैव योर ओन किड्स, यू नो, ऑल दीज थिंग्स बिकम वेरी स्मॉल. यू नो, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी दिखती हैं परिवार के सामने या बच्चों के सामने. यू नो, लाइफ में किसी का आप बेटर कर जाओ, वो बहुत बड़ा काम है. मैं ऐसे लोगों से भी मिलता हूँ जो दिन में 500 लोगों को खाना खिलाते हैं. दे आर विनिंग वर्ल्ड कप एवरी डे. यू नो, वो कितने लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज कर रहे हैं. दैट इज़ दी रियल लाइफ. यू नो, फॉर मी ये हमने जो कप उठाया, ये उठाया, ये सब ठीक है. कप तो उठाया आपने, बहुत सारे कप उठाया. कप उठाए, बट दैट्स नॉट इनफ. दैट वाज पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वी डिड दैट बिकॉज वी लव्ड इट. बट लाइफ इज़ वे बिगर देन जस्ट प्लेइंग द स्पोर्ट्स. आई थिंक स्पोर्ट्स ने सिखाया बहुत है. हार जीत का मतलब ज़िंदगी में कैसे किससे बिहेव करना है, बहुत कुछ सिखाया स्पोर्ट्स ने. और आज जो मैं हूँ, मैं स्पोर्ट्स की वजह से हूँ, मैं क्रिकेट की वजह से हूँ. विदाउट क्रिकेट आई एम ज़ीरो. पर ये है कि समवेयर आई फील देयर आर much bigger things in life than just playing cricket. So don't take too seriously. Sport teaches you a lot. Sports should be like sports and should be played like sports. You know, उसको हम इतना नहीं घुस जाना चाहिए कि यार यही सब कुछ है. You know, I used to have fight with my wife. जब on the field, off the field, कभी चीज़ें अच्छी नहीं चलती थी. You know, you bring that mood back home. और जब बात होती है और उसमें वो एंगर, वो सब चीज़ें निकलती हैं, उसमें उनका क्या कसूर. यू नो, वाई डू दे हैव टू सफ़र, वाई डू दे हैव टू गो थ्रू ऑल दिस. एंड इमेजिन, मैं अगर इफ़ आई लुक बैक, यू नो, कितने ऐसे मोमेंट थे जब मैं कोई टूर अच्छा नहीं गया. आई केम बैक फ्रॉम अ टूर एंड आई एम नॉट टॉकिंग टू माई फैमिली प्रॉपरली. सो आई रिग्रेट दोज मोमेंट्स. यू नो, दैट टाइम इज़ गॉन. तो मैं वो टाइम का क्या किया, ख़राब कर दिया वो टाइम. यू नो, व्हेन आई वाज विद माय सिस्टर, दे केम टू सी मी, आई डिडंट टॉक टू देम, आई वेंट अप, डिडंट वांटेड टू सी एनीवन. फॉर व्हाट? कम ऑन यार. Cricket was just a sports to enjoy, and when we started playing cricket, we used to love it, enjoy it, and suddenly this cricket became so big a burden for you that you're not enjoying your life. There is every cup that you won, Bajuba. 2020 World Cup. Then you won the Champions Trophy. You won the World Cup. There's not one trophy you haven't won. First ever IPL captain for Mumbai. You won a Champions League. Won IPL. You name it, you won everything. But it is not everything like you said. We will talk about that. But abhi obviously this segment is going really long because the conversation is amazing. You are headed to your commentary stint for the day today. बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल है और बहुत चर्चा भी होती है. लोग आजकल PR के बारे में बहुत बात करते हैं. सो आई जेन्युइनली एज अ प्लेयर, हैविंग प्लेड ऑल दीज ईयर्स, मैंने इस पे ध्यान लगाया भी नहीं है और करने का मेरा मन भी नहीं था, अभी भी नहीं है. आई वॉन्ट टू आस्क वन थिंग. ये जो नरेटिव है, ये जो हीरो और विलन का जो कमेंट्री में भी निकल जाता है, आपको कभी बोलता है ऐसे बात करने के लिए, नरेटिव्स देते हैं या लीड देते हैं, क्या होता है? नेवर. नो वन एक्चुअली टोल्ड मी. आपके लिए नहीं है, बट ऐसा होता है कि नहीं?
I don't think so because I just keep my own business. मैं बाकियों के काम में ज़्यादा घुसता नहीं हूँ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को बोला गया है. एंड आई डोंट थिंक कि ये कोई किसी को आके बोलता है कि ये नैरेटिव है. आज आर अश्विन 5 विकेट ले तो भी बुराई करनी है. आज विराट कोहली रन मारे तो भी बोलना है कि ये नहीं है. या आज MS धोनी ना भी कुछ करे तो उसको बढ़ाए जाना है. ओ थाला आ गए, ये आ गया, वो आ गया, फलाना हो गया. हमें नहीं कोई बोला जाता. इट इज़ योर चॉइस. आपने क्या बात करनी है, आपने क्या कितना बोलना है, दैट इज़ ऑल योर चॉइस. एंड ऑब्वियसली वन डे यू आर ऑल्सो गोना बी पार्ट ऑफ द पैनल्स समवेयर वे यू विल बी डिस्कसिंग क्रिकेट और ब्रॉडकास्टिंग. नहीं, मेरा हमेशा ये है कि थोड़ा और बेहतर क्रिकेट को एक्सप्लेन कर सकते. करेक्ट. और जो क्रिकेट को बेस्ट एक्सप्लेन करना है व्यूअर्स के लिए, दे आर सिटिंग लिसनिंग एंड इफ दे कैन गेट सम आइडिया कि यार वाकई यार ये ट्रिगर मोमेंट हुई तब आउट हुआ, ये नहीं हुई तब ये शॉट अच्छा लगा, ये हाथ से इसके बॉल ऐसे छोड़ा तो ये ऑफ स्पिन हुई, थोड़ा टॉप स्पिन था तो इसलिए हुआ. समहाउ नाउ डेज आई फील दैट क्रिकेट के बारे में बात कम होती है, स्पेसिफिक के बारे में. और ये बहुत सारी अदर डायरेक्शंस में बात घूम जाती है कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बट कोई बताता नहीं है. इट इज़ योर ओन चॉइस. यू कैन टॉक एनीथिंग. लैक ऑफ डेप्थ हमेशा मुझे लगता है कि थोड़ा लैक ऑफ डेप्थ. 100%. लैक ऑफ डेप्थ. क्रिकेट के बारे में कम बात करते हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा बात चलती रहती है. बिल्कुल. क्रिकेट शुड बी द हीरो. यस, एब्सोल्युटली. जो थोड़ा सोप अपेरा का टाइप चला गया, विच आई फील होपफुली इट चेंजेस इन द फ्यूचर. बट कमिंग बैक टू दीस कप्स, बजुपा, मैं जानना चाह रहा था क्योंकि I'll just cut you on this. Sorry, मैं अभी ना हाल फिलहाल में since we are talking about this, there are a lot of debates on trending mode, ये वो ट्विटर पे, यहाँ वहाँ सब जगह हिंदी कमेंट्री के बारे में बहुत कुछ बोला गया कि हिंदी कमेंट्री इज़ नाउ लाइक शायराना. बहुत सारी मतलब कहानियाँ वहाँ बताई जाती हैं. मैच आज का चल रहा है, आप 10 दिन पहले जो मैच हुआ उसका दिखा रहे हो, नरेटिव्स ये वो सब दिखा रहे हैं, तो बहुत कुछ हुआ. सो ये लोगों का एक जो पूरा बन के आया ना, वो हमारे लिए एक वो है कि यार उसको बैठ के रिफ्लेक्ट करें कि क्या हो रहा है. वी इट इज़ अप टू अस, हाउ डू वी टेक इट. ऑब्वियसली आपको प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो भी है वो बोलता है कि क्या बात करना है ना. ऑब्वियसली आज इसके बारे में बात करना है, द नैरेटिव इज ऑलरेडी. बट उनको पता है कि ये हमारे की पॉइंट्स हैं. बट यू कैन टॉक, चॉइस इज योर्स. इफ अश्विन इज आवर की पॉइंट टुडे, उसके बारे में अच्छा या बुरा बात करना है या उसके बारे, इट इज़ ऑन मी. बट कोई ये नहीं बोलता कि इसके बारे में ये बोलो, इसके बारे में ये बोलो. बट वो ट्विटर के जो ट्रेंडिंग से एक चीज़ बड़ी समझ में आई जो मेरे, आई सेड येस वी कैन डू बेटर. दे सेड कि क्रिकेट इज़ लाइक दैट, इट इज़ नॉट. वो जो आपने कहा ना कि बताई नहीं जा रही है क्रिकेट में क्या हो रहा है. शॉर्ट फाइन लेग है, डीप मिड विकेट है, वो पोजीशंस क्या हैं, व्हाट बॉल क्यों डाला है, वैसा दिमाग में क्या चलता है, वो सब. सो वो जब हमने थोड़ा सा बैठ के मैंने किया, आई रिप्लाइड टू अ पर्सन, आई सेड आई एम सॉरी, आई टेक योर वर्ड and we will try and get better. So कुछ नहीं गया. So it made me realize that yes, we can do better. है ना? There is no need for us to just go on about people. Let's talk about cricket, the sports. People love sports. Yes, they want to see their heroes doing well. Of course. But at the same time, बड़ी चीज़ क्या है? Game. Game से बड़ा कोई नहीं है. So let's talk about that. गेम से बड़ा कोई नहीं है. सही है. बजुबा, अगला सेगमेंट जाने से पहले एक सवाल है. इसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान देना चाहता था, बट उससे भी ज़्यादा कहानियाँ आपने निकला है बहुत. सो आई आस्क यू अबाउट दिस. बहुत सारे ट्रॉफी जीती हुई आपने. सबसे फेवरेट कौन सा था? फेवरेट और क्यों? Favorite was winning the World Cup. 2011. 2011, we were together lifting that cup, and I cried that day. I don't know. But why did you guys cry? I don't know, man. I didn't wanted to. I was not supposed to. There was it's a just guy, that, DJ, of course, Dhananjay, जो मुंबई के साथ काम करता था. So obviously I was very young, right? So मैं टीम में आया था. So सब लोग, you were crying, Paji was crying. I think Dhoni shed a tear or two. UV Paji was crying. Virupa actually was crying a bit. So I was like, I asked him, why are they crying? So he told me 2007 में जो वेस्ट इंडीज में हारे थे, that was a very very bad setback for them. And I think this is a sort of a redemption for them. बट एक और फनी चीज़ हो रहा था. बहुत सारे थोड़े लोग बाहर बैठे थे, जो मैसूर लोग हैं, जो फिजियो लोग हैं, वो भी रो रहे थे. they were also crying. मैं वो समझ में मैनेजर लोग थे, वो सब लोग रो रहे थे. आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई दैट वाज हैपनिंग,
बट आप कुछ बोल सकते हो कि See, for me it was like किसी ने वो चेस्ट से ना बहुत बड़ा वो हटा दिया हो पत्थर. ओके So वो burden, वो pressure, वो release when you feel that wow, suddenly everything is done. That's what you were living for, and now we have achieved that. And I didn't wanted to cry. It was not इट वाज planned. नेचुरल या obviously. It was like कि वो moment was such कि so emotional and so overwhelming. इतनी खुशी थी. So didn't know how to I react. cried a little What later happened? when I saw people dancing on top of Mercedes Benz on that Marine Drive. It was what a day. Somebody has brought a Mercedes Benz giving crore of rupees for that, but they're prepared to dance because the Indian team won the final. That was an amazing. Amazing. I mean, such moments in life, make you realize that how lucky we are to be able to, be at this position where we can, have so many people give happiness to so many people. praying for us. They wanted us to win. नहीं तो पड़ोसी नहीं चाहता है कि आप जीतो, है ना? But when you're playing for India, everyone wants you to win. Everyone wants. From Punjab, people are praying for you. For me, people are praying from Tamil Nadu because they want India to win. When you win and suddenly that feel, wow, मतलब वो moment ऐसा था मेरे से रुका नहीं गया. तो वो मेरे आंसू निकले. I saw UV doing it, then a lot of other people were doing it, and I'm a very emotional guy. It looks it, yeah. मैं जब मेरी बेटी हुई ना, when my daughter born, and I cried. My son was born, I was crying. तो मेरे समझ नहीं आ रहा यार, why कि क्यों हो रहा है? You don't want to do it, but it just I don't know why it's happening. मैं एक स्टोरी बताता हूँ, छोटी सी है, before I take too much of time. मेरी daughter, she was born in England, and she was only like 10-15 days, and I was doing up and down from India to England. तो मैं वहाँ से ना फ्लाइट पकड़ के वापस आना था मैंने. And Ash, even today I don't understand कि मैं आपको फ्लाइट में जाना डर था ना? हाँ, डर तो लगता था, आज भी लगता है, बट वो अब आदत सी हो गई है. बट वो समय में इतना मेरा मन ख़राब हुआ ना, मैं इतना भारी मन से वहाँ से निकला. आई एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग, एंड इवन इन द फ्लाइट वेन एवर आई वॉज थिंकिंग ऑफ हर, आई वॉज क्राइंग. एंड मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे जानती भी नहीं है. शी इज़ वेरी स्मॉल 10-15 days ओल्ड, पर मेरा इतना कनेक्शन है. तब मुझे लगा कि यार ज़िंदगी में ना इनसे बेहतर कुछ नहीं है. योर ओन किड्स, हमारे माँ बाप हमें बोलते थे कि बेटा जब तेरे अपने बच्चे होंगे ना, देन यूल नो. एंड आई सी कितना बड़ा उनका जिगरा था, मेरी माँ का, मेरे बाप का, जिन्होंने दे लेट मी गो, एंड गो एंड अचीव माई ओन ड्रीम्स. उनकी भी तो ड्रीम थी ना कि बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना. दे लेट मी गो फ्रॉम एज ऑफ 13. आई वेंट आउट, प्लेड all my cricket, and I was hardly with them, and even today I'm hardly with my mother. कितना बड़ा जिगरा है उनका. So that moment made me realize that how big a sacrifice my mother and my father or my sister हमारा जो पेरेंट्स हैं बजीवा, वो जनरेशन का पेरेंट्स अभी से मिलने वाला नहीं. हम भी नहीं हो सकते उनके जैसा, क्योंकि they made far too many sacrifices than what we ever can make. Of course. Actually, you're such a good storyteller. I haven't seen this side of yours. Amazing. Thanks for coming, I must say once again. मेरी थोड़ी सी वही ना लैंग्वेज बैरियर है, नहीं तो मैं और बेटर हो सकता हूँ. क्या लैंग्वेज बैरियर है? ऐसा कुछ मुझे I don't feel अंग्रेजी anything. में आगे फंस जाती है. Yeah, your English and Hindi together is amazing, Bajuba. But let's dive into the next segment. Actually, मुझे लगा था ये सवाल आपसे पूछने के लिए थोड़ा सोच कर सोच रहा था. मैं अभी पूछूंगा. The Gentleman's League question brought to you by Peter England. जेंटलमैन हम बोलेंगे ना, तब जेंटलमैन क्रिकेट के साथ एसोसिएट हो जाता है. सो इफ यू हैड टू नेम ट्रू लेजेंड्स ऑफ द जेंटलमैन्स गेम, प्लेयर्स हु इंस्पायर्ड जनरेशंस, हु वुड मेक योर लिस्ट? फॉर मी ऑफ कोर्स कपिल पाजी है, विवियन रिचर्ड्स है, सचिन तेंदुलकर है. सो ऑल दी, आई मीन राहुल द्रविड़ है. आई मीन यू कांट लुक बियॉन्ड देम. बट आई एक्चुअली वुड लाइक टू इंडक्ट यू आफ्टर दिस पॉडकास्ट इनटू दैट लिस्ट. सो हम जैसे लोगों को देखते हैं बाहर से, जैसे आपने कहा, don't judge the book by its cover. A true gentleman is someone who's able to take lessons of life, lessons from the game, and apply it in the life post that. You've truly arrived at that particular situation, but what would your list of gentlemen's
league look like? I mean, you rightly mentioned those names: Kapil Paji, great Viv Richards, Steve Waugh, Jack Callis, great Tendulkar, Anil Kumble, Shane Warne. Shane Warne, right? ये सारे मतलब जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख के लगता था कि यार इनकी तरह बनना है. What does a true gentleman look like for you, Bajupa, on a cricketing field? Why do people, like for example, अगर मैं किसी से पूछता हूँ आजकल, वो केन विलियमसन को बोलते हैं जेंटलमैन क्रिकेटर है. I'll tell you, सचिन तेंदुलकर, for me, मैंने उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया. पाजी मुझे लगते हैं कि बहुत बड़ा नाम है. धड़कन, देश की धड़कन, सचिन तेंदुलकर, दैट बिग ऑफ अ नेम, और इतना हम्बल आदमी. आई हैव नेवर मेट अ पर्सन बेटर देन हिम. जो मतलब इतना नाम हो, इतना अचीव किया हो, और वो सबके साथ ऐसा ट्रीट कर रहा हो, वेदर इट्स मी और एनीवन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. आई हैव सीन दोज विजुअल्स वेयर पीपल हैव कम रनिंग, बिछ गए पैरों के ऊपर, उठा के गले लगाना. मतलब बहुत हम्बल आदमी था. तो मेरे लिए वो ट्रू जेंटलमैन है, जो लोगों को प्यार करे, है ना, जो लोगों का अपना आदमी हो. That is what is the typical the Punjabi in you is truly coming out, but they're very loving and emotional people, right? पंजाबियों को एक ही तरीके से जीता जा सकता है, प्यार से. पंजाबियों को आंख दिखा के नहीं जीता जा सकता है, ये बात पक्की है. और पंजाबियों को अगर आप कहो कि ना मेरे लिए ना भाई ये कर दे, वो अपनी जान तक दे देगा तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए. पंजाबी ऐसे इंडिया के लिए इतने सालों से खेला और एक चीज़ सीखा बजुपा. पहले तब मैं चालू किया था ना, इंडिया इतना वाइड है, इतना फ्रंटियर्स है कि हमें समझ में नहीं आता है एक पंजाबी का घर में क्या बोलकर उनको बच्चे को हम ब्रिंग अप करते हैं, जैसे तमिलनाडु में करते हैं. वी ऑल डोंट नो हाउ इट हैपेंस इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड ट्रूली अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस डू एग्जिस्ट इन द कंट्री व्हिच इज चेंजिंग. आप मिसकंसेप्शंस के बारे में मैं थोड़ा सा कि क्या मिसकंसेप्शन है वो जो मिसकंसेप्शन मतलब they don't know the cultural differences between other places. Correct. So बहुत सारे लोगों ने I used to understand, तब हम जाते हैं ना मद्रासी बोलते हैं, उनका एक मद्रासी का प्रोटोटाइप रहता है. जैसे आप लोग तमिलनाडु में आए हो, चेन्नई में आए हो, और पंजाबियों का एक प्रोटोटाइप रहता है. दैट प्रोटोटाइप इटसेल्फ इज चेंजिंग. मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था उस दिन, और उसमें बोल रहा था कि इंडिया वाज अ कॉलोनाइज्ड कंट्री. जैसे इंडिया को कॉलोनाइज किया है, ये अलग अलग रखने का एक स्ट्रैटेजी था. एनीवे, जेंटलमैन का लीग आप बोला सचिन पाजी का, उससे ज़्यादा दूर नहीं देख पाएंगे. अगला राउंड है बजुबा. मैंने पहले आपको बताया था, DRS विद ऐश. जिसमें थोड़ा तेज चलना पड़ता है, क्योंकि ये कहानी है जो आपने नहीं आपको एक पावर है डिसीजन रिव्यू करने के लिए. आप इतना सारे DRS के साथ खेले नहीं क्रिकेट, बाद में आया था DRS, इंडिया ने मना किया इतना. आप 2015 में आए थे, तभी भी DRS नहीं था शायद. आया था. आप हम लोग एक गोल में टेस्ट मैच खेला था, तब उसमें था शायद. नहीं, उससे पहले भी आ गया था DRS आए थे, हम माने नहीं. नहीं, उससे पहले एक बार आया था, आई थिंक जो अजंता मिंटेस का सीरीज और 11. यस, करेक्ट. इन दैट सीरीज अनिल भाई टू कॉल द DRS. अनिल भाई से मैं सवाल पूछा था, अनिल भाई क्या गलत DRS ले लिया यार. फिर उसने बोला मेरा नहीं, वो दिनेश का ना, दिनेश को पूछो. एक याद है अभी भी, आपने डाला था, या शायद तिलन समरवीरा था या महिला जयवर्धने था. आपने एक कमाल का ऑस्पिन डाला था, शायद राउंड द स्टंप या ओवर, मुझे याद नहीं है. और बाहर आए, ऐसे खेले, और बॉल ना बिल्कुल फ्लैप पे लगी थी. हाँ. आप लोगों दोनों, दिनेश और आपने अपील किया, और आप पीछे घूमकर चले भी गए. हाँ. अनिल भाई शायद मिड विकेट में था या मिड ऑन में था, तो दिनेश उसको बुलाकर बोला ये रिव्यू करो, और बॉल कम से कम मैं बोल रहा हूँ इतने हाइट से बाहर ऊपर गए, और आउटसाइड ऑफ स्टंप भी था. फिर उसने, अनिल भाई ने मुझे बोला कि वो सारे मुझे फील्ड का DRS, और अनिल भाई ने भी एक रिव्यू किया बैटिंग का वक्त. हाँ, वो याद है आपको? याद है, जैसे ही लगा बीच में लगा और ऐसा किया अनिल भाई ने. एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बट दैट्स DK ना फॉर यू. DK वांट्स इट कि हो सकता है आउट, ले लो हड़बड़ाहट. छोटा चीका, वी कॉल हिम छोटा चीका. क्यों? चीका इज लाइक ना फुल ऑफ दिस, ए यार डा. उनके आजू बाजू बैठ नहीं सकता आदमी, इधर से फाड़. आपने देखा वो हेमंत को मारा बैट में, देखा आपने? अरे मेरे को कितना मारा यार. अरे नहीं, स्टूडियो में बात कर रहे थे आपस में. हाँ. और चीका के हाथ में बैट था, और कुछ नहीं वो पुल मारा, ऐसा कट मारा, हेमंत को जोर से मारा, हेमंत बदानी को, और शायद उसको कुछ हुआ, फ्रैक्चर पता नहीं क्या हुआ था, बट मार दिया उसने.
ऐसा घुमा के करता है ना, जैसे हमारा वो स्पीच दिया था 2011 वर्ल्ड कप में, Correct. वैसे उसको लग गया. एनीवे, कमिंग बैक टू द I have got a lot of stories on Chika. मतलब I don't know if we should be talking about him, but बहुत फनी कहानी है उनकी. छोटा सा बता दे यार मुझे एक बार उन्होंने we were playing in America, इंडिया है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है. सो वो विकेट थोड़ा ऐसे ही था, अनप्रिपेयर्ड काइंड ऑफ अ विकेट. कहाँ बोले आपने? अमेरिका में लॉस एंजलिस था या कहीं तो भी था. वो ब्रेटली, शेनली, एंड्रू साइमन, गिलक्रिस्ट, ऑल ऑफ दीज गाइज प्लेड. नेथन ब्रेकन ठीक ठाक बॉलर थे उनके. एंड वी वर गेटिंग आउट ओनली 70, 80, दैट काइंड ऑफ. Chica was coach. So, we were 5 down for like 40, 50 and I went to bat. And those guys are bowling fiery balls. टाक टाक इधर उधर से निकल रही है बॉल. मैं ऐसे मारूं उधर 4, इधर मारा उधर 4. तो ज़्यादा ऐसे बैट पे लगा तो वो चौका गया. और जो बॉल घुमाया बोल्ड, क्विक 20. आई केम आउट. हे वेल डन, प्लेड वेल. ओके, तो हो गया 90 ऑल आउट हुआ गया. नेक्स्ट मैच ए सरदार विल गो बैट नंबर 3. नंबर 3 मैं, अरे बाप रे मर जाऊंगा यार, वो इतनी तेज कर रहे हैं बॉल. वो मेरे को उसने नंबर 3 भेजा कि यू गो एंड लगाओ डा. सर ठीक है, ओके सर. अब आई वेंट, कौन ऐसे खेलेगा. तो ऐसे फर्स्ट बॉल डाला, ब्रेटली वुप निकला. और मैं डर गया भाई. मैंने कहा लगेगा बॉल, इधर लगा बॉल. उसके बाद मैं हिल गया. मैंने कहा यार अभी विकेट पे रहना नहीं है, छोड़ के मारूंगा. उसमें बोल्ड हो गया मैं. अभी मैं बोल्ड हुआ, मेरी जान बच गई. मैंने बच गया. और मैं बाहर जाके ऐसे बैठा हूँ. सो आई हैव टू एक्ट राइट कि आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट. सो बट अंदर से तो जान बच गई थी. चीका केम, ही केम एंड ही किक्ड माई हैंड. आई वाज होल्डिंग दैट ये आर्म गार्ड. या तो मैं ऐसे, ही किक्ड दैट थिंग एंड आई सेड, hey, what do you think of yourself? I said, sir, I don't think anything of myself, but you should have played straight. No, I said, sir, मैं लास्ट मैच में भी ऐसे ही खेला था, 20 बनाए थे. ये what rad? तो दिया, हड़काया मुझे, चला गया. तो ऐसे बहुत कहानियाँ उनकी. He slapped अजय जडेजा once. Slapped? Yeah. We were in like in a funny way? No, proper way, man. So Ajay Jadeh was leading the team, and he was, मतलब Chika style, maybe he felt it was funnier, but the moment it went phatak, it was like what? कहाँ से आया आवाज? एयरपोर्ट पे हैं हम लोग. We went there to play Commonwealth Games में क्रिकेट गया था तब. वहाँ चीका का लड़ाई हो गया एक लोकल मैनेजर से. उधर से वो चिल्ला रहा है, इधर से ये चिल्ला रहा है. They are all like, गुस्सा आता है चीका सर को? चीका सर फुल ऑन. ये इंग्लिश में बोल रहा है, उधर वो हरमिंदर करके था, वो पंजाबी में. वो बोल रहा है, वी नीड 10 बॉटल ऑफ वाटर. वो नहीं है यार, किनिया बॉटल. यू डोंट लिसन टू मी हरमिंदर. ये क्या दिया उसको. हम देख के हंसे जा रहे. और सडनली वो बोलते, ए व्हाट आर यू लाफिंग फॉर. तो वो हमें भी बीच में हड़का रहा, उनको भी हड़का रहा. Such a character, man. Right, anyway, actually So I stay away from him. Wherever he is, वो 5 फुट दूर रहना है, क्योंकि उनका हाथ कभी भी कहीं भी चल सकता है. हमारा बचना हमारा काम है. Oh yeah. You have to kind of. And दिनेश कार्तिक, उसके हाथ नहीं चलते, but he is also very fidgety. यहाँ वहाँ गिर जाएगा. ऐसे बेटे ठड़प गिर जाएगा. ओह अच्छा. कोई भी उसका एक मैं कहानी बताता हूँ. We were having a drink break. Someone got out in Zamam, got out in Birmingham. दिनेश कार्तिक हाथ में ट्रॉलीज पकड़ी हुई है. We were in huddle. He came running. और उसको पता ही नहीं ब्रेक कैसे लगानी है. सीधा सौरव गांगुली के ना इधर मारा उधर. ऐसे ब्रेक मारते ढुप उसमें जाके घुरा. सौरव गांगुली ऐसे हडल में है इधर. अरे डीके तू क्या कर रहा है इधर. सॉरी. डीके पानी लेके आया था, वैसे ही वापस. Anyway, आपको एक DRS मैं ऑप्शन देता हूँ. आपका लाइफ का जो डिसीजन है और जो भी आपने किया है, अगर आप रिव्यू करके उसको बदलना चाहते हो तो कौन सा? मेरी लाइफ का, हाँ, जो भी क्रिकेट में, लाइफ में, जो भी. लाइफ का एक डिसीजन जो मुझे बदलना चाहूँगा कि जो दैट इंसिडेंट विद श्रीशांत happened there in I think you were captaining. नहीं no. IPL you were playing for CSK. I thought you were captain. नहीं, किंग्स और मुंबई का गेम था वो. किंग्स में खेल रहा था ना. Yeah. Kings versus Mumbai Indians. That game, that is the incident I want to remove from my
यू नो करियर, माई विश लिस्ट जो है ये उसमें कि भाई वो जो हुआ गलत हुआ. आई शुडंट हैव डन व्हाट आई डिड द अदर डे, बट दैट्स ऑल. उसको मिलके सॉरी भी बोल दिया आपने? मैंने 200 बार बोला. यू नो व्हाट आई फेल्ट वाज सो बैड. यू नो इतने साल हो गए उस इंसिडेंट को. मैंने हर जहाँ भी बैठा हूँ, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आई एम अगेन सेइंग कि मेरे से गलती हुआ. यू नो वी ऑल मेक मिस्टेक एंड कोशिश करनी है कि दोबारा नहीं करेंगे ऐसी मिस्टेक. यू नो ही वॉज माई टीम मेट, वी वर प्लेइंग टुगेदर. येस, इन दैट गेम वी वर अगेंस्ट, बट इट शुडंट हैव गॉन टू दैट लेवल वेयर वी नीड टू काइंड ऑफ यू नो बिहेव इन सच मैनर. तो वो मेरी गलती थी. यू नो उसमें उसका जो कसूर था वो यही था कि उसने मुझे प्रोवोक किया. बट ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक था, बट मैं अपनी जगह पे ठीक नहीं था. सो आई सेड सॉरी. बट जो चीज़ मुझे हर्ट करी ना, बड़े सालों बाद मैं उसकी डॉटर को मिला और मैं उसको बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, हेलो बेटा. शी सेड आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, यू हिट माय फादर. मेरा मन टूट गया, दिल टूट गया यार. आई स्टार्टेड यू नो मेरा रोना आ गया यार कि अब उस बच्चे के लिए मैंने क्या छाप छोड़ दी है यार. शी इज़ थिंकिंग दैट कि ये बंदा कैसा है, इसने मेरे फादर को मारा है. सो आई फील कि मुझे वो इतना ख़राब लगा ना. मैं आज भी बोलता हूँ, बेटा आई एम सो सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग. इफ़ आई कैन डू एनीथिंग टू मेक थिंग्स बेटर वे यू फील दैट आई एम नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, प्लीज़ टेल मी. तो आज मैं चाहता हूँ कि बच्ची जब बड़ी हो वो कभी भी ये ना सोचे कि उसका अंकल ऐसा है. उसका अंकल विल ऑलवेज बी विद हर, विल बी विद her to give any kind of support whatever I can. So I want to remove that chapter. I just want to reiterate to the people who are watching this also, गलती सबसे होता है बजुबा. The best thing about what you're talking today and what I'm hearing, I've heard about how you crossed the journey and बहुत लोग बोलते हैं कि बजुबा is a completely different person. Coming out clean is the best thing that we can all do. We are all learning. We all make mistakes. So आई थिंक वो जो नज़रों है ना, आज द प्रॉब्लम इज सोशल मीडिया में जिसका चेहरा नहीं है, दोज हु डोंट हैव अ फेस मेक लाइफ इवन मोर हार्डर फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो उसके बारे में आप चिंता मत करो. आप मेरा हीरो था, आप हीरो ही रहोगे. एंड मिस्टेक्स का कोई इसमें नहीं है बच्चों. व्हेन यू सेड ऑल्सो आई सॉ दैट स्मॉल टीयर इन योर आइज एंड आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट. जो हुआ आपने सॉरी बोल दिया, काम खत्म हो गया. एनीवे अगला राउंड में थोड़ा लाइट जाएंगे. आपका जो लाइटनेस है वो निकलना चाहता हूँ मैं अभी. फ्री हिट राउंड है. आपने बहुत सारे फ्री हिट खेले नहीं होगे, डाले हो आप नो बॉल डाल के फ्री हिट? बहुत कम. ठीक है. एज अ स्पिनर दैट इज वन थिंग दैट इज मैं ज़्यादा नो बॉल नहीं किया मैंने लाइफ में. आजकल तो होता ही है, स्पिनर से भी प्रेशर में डालते हैं. स्पिनर लोग बाउंसर भी डालने लगे. आई नो, डालना पड़ता है बजुबा. कुछ नहीं है, बॉल घूमता नहीं है, कुछ नहीं होता है तो डालना ही पड़ता है. एनीवे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ साइड स्टैंड ना हो जाए. एनीवे आपका फनीएस्ट क्रिकेटर यू हैव शेयर्ड अ ड्रेसिंग रूम विद. पहला सवाल. फनीएस्ट क्रिकेटर? हाँ जी. ओहो, एक नहीं, बड़े हैं यार. आप खुद को भी कैसे बोल सकते हो? नहीं, मेरे से भी बड़े थे. बोल सकते. आशीष नेहरा वाज प्रीटी फनी, you know, and in new generation I think Virat Kohli, again, you know, I've spent a lot of time with him. You know, I find he's too funny. You know, he's very funny, very उसका मूड witty. डिपेंडेंट है. या मूड हमारे साथ मूड उसका हमेशा ही ड्रेसिंग रूम में कभी कभी होता है वो थोड़ा इधर उधर. लेकिन जब हम लोग थे ना वो उसका वो तो ऐसे था कि पंजाबी को देखा, पाजी 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 आगे पीछे ये वो उसका एक्चुअली बिना भाषा समझ के ना, दो पंजाबी अगर मजाक कर रहा है देख के आप हंस सकते हो. करेक्ट. तो 100% मैं ये मानता हूँ. थोड़ा लस्सी बीच में रखो और एंजॉय करो. विराट इज टू फनी. शिखर धवन इज टू फनी, एक्स्ट्रा फनी. तो अगर इमेजिन आपके पास 4-5 पंजाबी हो ना ड्रेसिंग रूम में, तो आपका ड्रेसिंग रूम का माहौल विल बी लाइक सुपर हैप्पी. एक बार आई मीन जस्ट शिखर धवन नाम बोल के आ गया ये भूल जाता. नहीं, वो वेलिंगटन में हम लोग मैच हार गए यार. शायद टेस्ट में नहीं हारा नहीं, वो जो 100 बनाया ना ब्रेंडन में ड्रॉ हो गया. बहुत लोग थक गए, फील्डिंग कर करके थक गए. सो शिखर और 2-3 लोग और थे और मेरे से पूछा था कि आप आ सकते हो मेरे साथ, आज हम जाते हैं थोड़ा बाहर जाते हैं, डिनर विनर खाते हैं. तो डिनर में ऐसे ही बात कर रहे क्रिकेट के बारे में बात कर रहे. थोड़ा ही स्टार्टेड टॉकिंग खुल के, बहुत सारे चीज निकल गया उसमें से. और डिनर हो चुका है वो भूल गया. इतने सारे चीज बोलना नहीं चाहिए थे. और भी लोग थे, कोई उनका दोस्त लोग थे, वो ज्यादा
क्रिकेट के बारे में, लोगों के बारे में बात करने लगा और उनको लगा कि वो गलत था. सो उसको पता नहीं वो कैसे बोलना था, बाहर आके हंस रहा था, ऐसा कुछ कोशिश कर रहा था. फिर मैंने पूछा उसको, व्हाट आर यू थिंकिंग? नहीं यार, एक बोलना था मुझे, ऐश सबको बोलूं? हाँ बोल दे यार. मैं था ठीक है तेरे, बट ये लोग टीम का लोग नहीं है ना, मुझे बोलना है. बोल यार शिखर. फिर बोला, अब व्हाट हैपेंस इन न्यू वेलिंगटन स्टेज इन न्यू वेलिंगटन. न्यू वेलिंगटन नहीं है. उसको बोलना था कि व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस. सो उसको न्यूजीलैंड विलिंगटन बना के न्यू विलिंगटन. दैट इज शिखर धवन. एनीवे, अगला सवाल है, फ्री हिट भी ऐसे ही जा रहा है. स्लेजिंग इज एन आर्ट फॉर्म और प्योर इंस्टिंक्ट? प्योर इंस्टिंक्ट. प्योर इंस्टिंक्ट. आपके लिए तो इंस्टिंक्ट ही है, अब समझ गया. योर गो टू चीट मील इवन टुडे? आप अच्छा खाना भी पकाते हो ना. गो टू चीट मील. गो टू चीट मील इज आलू पराठा. आलू पराठा दही के साथ? हाय हाय. दही और मक्खन. मक्खन सफेद वाला, वाइट मक्खन जो घर से निकलता है ना, हांडी से. बेस्ट. राइट. इफ नॉट फॉर क्रिकेट, आपने बोला क्रिकेट के अलावा कुछ जानते नहीं हो, बट आप तो पुलिस. No, I was given a job. That is also because of cricket. Okay. But so I cricket के वजह से, ठीक है. If not for cricket, what would Harbhajan Singh be today? A soldier. Soldier. Nice. Okay, that's good. Yeah, it's also for India. One cricket rule you would change if you are ICC chief for a day. For a day. नायक का मूवी देखा आपने? हाँ. एक दिन का सीएम बनना है, एक दिन का ICC एक chief. ही रूल चेंज करना है. हाँ. I'll go back to one day cricket में back to one ball. One ball. And having 5 fielder outside the circle after 10 overs, not 15 overs. इस पॉडकास्ट में डिबेट ही नहीं है, बस सील है वो. चलो. One batsman you would pay to watch even today? पैसा देखे. Modern days में आज कभी भी. Any batsman? Viv Richards. Nice. Okay. Your most IPL memorable moment in the IPL? मत बताओ कि रिकी पॉन्टिंग ने कैच पकड़ा आपके बॉलिंग में. वो नहीं था. बट विनिंग द फर्स्ट ट्रॉफी वाज द मोस्ट आइकॉनिक एंड चैंपियंस लीग या आईपीएल 2013 था ना. हाँ. Even Champions Trophy was a very iconic moment because that was our first trophy for MI and me leading the team. We hardly had kind of players. Rohit नहीं था, Paji नहीं था, Munaf नहीं था, but young team played together. It's all about how you come together and perform on the given day. So that was also a very very big moment for me. Okay. Toughest batter you have bowled to? There are many, too many. Probably you can pick two. If I have to pick two, I think Callis was one of those. What a player. Very tough to bowl to. And then Matthew Hayden. Oh. Outstanding player. He kind of dominated me, even though I got him out a lot of time. बहुत powerful आदमी था. बहुत powerful खेलता. His height, his stride was too big. And that sweep shot. उसने 200 बनाया चेन्नई में अभी भी यार. क्या आपका कमाल का बॉल निकल रहा था हाथ से. 200 बनाया था. मैं साइड स्टैंड से देख रहा था. You were there? अगला सवाल है, डिस्क्राइब दीज क्रिकेटर्स इन वन वर्ड. सचिन तेंदुलकर. गॉड ऑफ क्रिकेट. ओके. वीरेंद्र सहवाग. डॉन ऑफ क्रिकेट. राहुल द्रविड़. सेंट ऑफ क्रिकेट. युवराज सिंह. फ्लैम्बॉयंट. महेंद्र सिंह धोनी. कैप्टन. दादा. लीडर. ओके. कैप्टन लीडर. नाइस. अनिल भाई. मेंटर. अश्विन. philosopher. lot of people say आप हो philosopher. आज के दिन के बाद आप हो. नहीं man. But lot of people say Ashwin talks this on everything. I said obviously knowledge है तो बंदा बात करेगा ना. नहीं but आज के बाद आप हो. बट सबको एक एक लाइन दिया कि सबका बायोपिक के लिए नाम मिल गया. अच्छा. जहाँ आज का मूवी का सारे नाम जैसे ही निकलता है. सो अगला सवाल वो है, ओके, वन एक्टर हु कुड प्ले हरभजन सिंह इन योर बायोपिक और बायोपिक का नाम. इतने लिया, लीडर, कैप्टन, अच्छा संभाला आपने. सो आपको ये बोलना पड़ेगा, वन एक्टर और आपका बायोपिक का नाम. मेरी बायोपिक का नाम होगा दिल से. राइट. और एक्टर होगा जिंटा और शाहरुख खान. नहीं, विकी कौशल. क्योंकि लव स्टोरीज होती तो फिर मैं खान साहब को बोलता ही इज द बेस्ट. बट आपका लव स्टोरी तो 100%. प्रॉब्लम इज टू मेनी लव स्टोरीज आर देयर, सो यू कांट हैव
कि मैं लिंक भेजता हूँ. हाँ भेज देना. Right. What's one favorite thing that you do with your kids, especially with your daughter? Because your son is like about 3 years old. Favorite thing, she loves swimming. Swimming, nice. Yeah. So whenever we get the chance to आप अच्छा swim swimming together. मैं ठीक ठाक हूँ. मतलब I can survive. बचाने के. But she's very good. Okay, nice. She can save me. Do you want your daughter to be a cricketer or son to be a cricketer? I want them to be a good human being. Simple as that. And leave it on them. You know, whatever they want to do, I'll be there for them. Right. That brings us to an end on this episode of Kutti Stories with Ash. Bajuba, there have been several guests on the show, but this has been very, very special. Because you see a lot of people commit mistakes. Sometimes they come and tell you sorry, but a lot of people tend to live their lives as who they are. वो गलती मानते नहीं है. They don't accept their mistakes because acceptance is the first step for you to grow in life, and learning stop only when we die. That is how life is. But this podcast has truly been special. आप एक चीज़ याद रख लो. जो भी आपने जो कॉल किया है, उस दिन के बाद मैं सोच रहा था क्यों हरभजन सिंह को मुझे कॉल करके क्लियर करना पड़ा. बट देन मैंने समझा कि ऑब्वियसली क्रिकेटर्स सोचेंगे कि गलत मानेंगे, ये है वो है, बट मैं कभी ऐसा सोचा ही नहीं है. क्योंकि आप एक याद रख लो, मैं एक ऑफ स्पिनर हूँ आपकी तरह, और एक लेजेंड हूँ, मैं खेल रहा हूँ, एक दूसरा ऑफ स्पिनर आ रहा है, थोड़ा बहुत मेंटली रहेगा कि मैं ऑफ स्पिनर हूँ, मेरे जगह पे लेने के लिए आ रहा है, वो तो रहेगा ही. बिल्कुल. और मैं मान लिया वो सब, एंड माई रेस्पेक्ट बिकॉज ऑफ दैट नेवर डिट्यूरेटेड. मैं हमेशा सीख रहा था. और गॉल टेस्ट मैच के बाद आप मुझे आके बोले, मेरा सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था कि बोला आपका बॉलिंग कहीं और है, आप अलग लेवल पे बॉलिंग कर रहे हो. दैट वाज माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट. इट केम अ फ्यू ईयर्स लेटर देन आई वांटेड इट, बट दैट वाज माई फेवरेट मोमेंट. लोग बहुत बार कहते हैं कि आपने पिच के बारे में चर्चा किया, मेरे बॉलिंग के बारे में, या बॉलिंग के बारे में ज़्यादा मैंने देखा नहीं, इतना मैं ध्यान भी नहीं दिया. बट दिस होल जेलसी बिट, बिफोर आई अलाउ यू टू आंसर दैट, मैं लोग को ये क्लियर करना चाहता हूँ. लोगों ना उनके आंखों से सब कुछ देखते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर पासिंग अ कॉमेंट ऑन मी, लेट्स से उनका इतना भी बैंडविड्थ है, उनके तरीके से लोग देखते हैं. सो ये जो कॉमेंट है दैट यू आर जेलस of this person interviewing you today, what would that be about, Bajuba? Do you think I am jealous of you? You are sitting with me today. We have spoken in length. Do you think I'm that kind of Look, even if you were jealous at one point of time, I think it's justified. That is my point. And I will never take it wrong. Because हम सब इंसान हैं. We are naturally bound to be like that. अगर मेरे लिए अभी लोग आके बोले थे कि वॉशिंगटन सुंदर आया इसीलिए वो रिटायरमेंट ले लिया, लोगों के आंखों में से है. Correct. That is their that is their way. But they look at it. I just want to make one point very clear that obviously when you came into the side, playing two spinner, obviously you know that this could be the guy who will be playing for longer period of time. कि भाई ये एक बंदा और आ गया है, कंपटीशन है. अब एक सीनियर आदमी 400 विकेटें लेके बैठा हुआ है. अब मेरे जहन में उस वक्त कहीं छोटा मोटा भी अगर कोई ख्याल आएगा थोड़ा बहुत कि यार मेरे को आई हैव Very टू natural. स्टेप अप ऑन माय गेम. बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि टुडे वी आर सिटिंग कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर रीजन. आई प्लेड दिस गेम. उससे पहले भी कोई खेल रहा था, मैंने भी किसी को रिप्लेस किया था. और अगर मैं कहूँ कि रिप्लेस किया वैसे भी आपने? मैंने राजेश चौहान. ओके. तो अगर बट फर्क है ना, 400 विकेटों और 100 विकेट के बीच में बहुत फर्क है. चलो, you've been a legend of the game, सर्व कर रहे थे गेम को. बट ये है ना कि दिस इज नॉट अ परमानेंट स्पॉट. यू कैन नॉट बी देयर फॉर एवर, है ना. समबडी विल कम, दे विल डू बेटर देन यू, एंड देन यू विल बी देयर एट द टॉप, एंड देन समबडी एल्स विल कम, दे विल डू बेटर देन यू. आज लोग वो बात कर रहे हैं कि यार हरभजन सिंह को जेलसी थी. आई स्पोक अबाउट विकेट्स विच आई ट्रूली मेंट. इवन टुडे आई फील कि पिचेस में बहुत ज़्यादा मदद थी. यू आर सिटिंग हेयर. मैं इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि टू मेक यू फील बैड, बट आई फेल्ट कि जो पिचेस पे हमने क्रिकेट खेली थी उससे वो अलग विकटें थी, विच वॉज एविडेंट कि अगर हम देखें कि 3 दिन में 3.5 दिन में गेम ख़त्म हो रहा है. But I'm not taking any credit away from you guys. आपको डिस्क्लेमर देना जरूरी भी नहीं है. You still have to bowl there,
टू गेट पीपल आउट. मैंने बहुत सारी ऐसी पिचेस पे बॉलिंग करी है जहाँ बॉल इतना स्पिन हो रहा था, वो वहाँ मुझे मैं आपको 0 विकेट पहले मिला. ही इसके लिए जवाब दे दिया. जो आप बोल रहे हो अभी उसके लिए डिस्क्लेमर क्यों नहीं देना है, क्योंकि आप आपका ओपिनियन दे रहे हो. नहीं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि वो कि मेरा सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए नहीं था कि अश्विन विकेट ले रहा है, मेरा इसलिए था कि जिस तरीके की क्रिकेट हो रही है कि 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है, अब वहाँ वो तुम्हारी किस्मत है. तुमने 500 ली, तुमने 600 ली, तुमने 1000 ली, दोज आर ओनली नंबर्स, you know, and you are a true champion. You have done well, not just with the red ball, you have done well with the white ball, and not you have just done well here in India, you have done well wherever you have played. And we played together in Sri Lanka, and I have seen you bowling, probably 10 times better than me, what I was bowling at that point of time. I was not probably at my best, and you were just emerging, and you were, तुम्हारी बॉल में अलग जिप था भाई, तभी तुमने वो विकेट लिए वहाँ पे. 25-26 कितने मैन ऑफ द सीरीज यू वर देयर. 30 विकेट कितना लिया था, आई डोंट नो. मुझे है ना. सो वेयर आई वाज स्ट्रगलिंग टू स्पिन द बॉल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन माय करियर. शायद मेरी वो स्किल में कहीं ना कहीं गिरावट हुई थी, कहीं ना कहीं वो मेंटल मुझे थोड़ा जो ब्लॉकेज थी उसके कारण कि यार ये बंदा ले रहा है, मैं नहीं ले रहा हूँ. आई वाज नॉट एबल टू डू इट द वे आई वाज सपोज टू डू. बट वो समय जो है था, तब पता लग गया था कि भाई अब आई हैव टू मैच अप टू हिज काइंड ऑफ लेवल ऑफ बॉलिंग, क्योंकि ये बंदा, उसके शोल्डर में बहुत जान है. अभी मेरा शोल्डर 15 साल पुराना है, तो आई हैव टू कंटिन्यू टू वर्क हार्ड टू, तो आई हैव टू कंटिन्यू टू डू समथिंग टू गेट बेटर एंड टू compete with him and to show कि that यार I still exist and I'm the better version. बट अगर वो नहीं हो रहा है ना, somewhere down the line you have to kind of think कि भाई that's it. अब ये नई जनरेशन है, दे टेक द लीड, दे टेक थिंग्स फॉरवर्ड. वो मान लेना बड़ी बात है. लोगों को लगा मुझे जेलसी हुई, मुझे 1% भी तुम्हारे से जेलसी नहीं है. आई एम द हैप्पीएस्ट कि समवन हैव टेकन these numbers of wickets. हो चुके हैं, मैं भी रिटायर हो चुका हूँ. और there are no dramas, no whatsoever. कोई भी जेलसी करके कोई कुछ नहीं होगा. This was your किस्मत, this was your destiny. तुम तो क्रिकेट खेलनी भी नहीं चाहते थे ना. You never wanted to play. You wanted to be someone else. आप क्रिकेट खेले. मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, मुझे लगा कि मैं कम था एबिलिटी में, इतना नहीं था मेरा एबिलिटी. But then मेहनत किया. God have different plans. That's what I spoke in the beginning of this. What we plan, our plan is very small. His plans are very big. You wanted to play a little, he gave you this much. And that this much is a lot. जितनी सोचा नहीं उसने ज़्यादा दिया. आप तो तिरुभजन सिंह है, सो तमिल में एक छोटा सा वो है, बोल के ख़त्म कर देता हूँ. विरुमांडी करके एक मूवी था, कमल हासन ने किया है, जो पूरा बड़ा मुस्टाच रख के, आप तो देखा होगा पिक्चर. उसमें बोलता था कि मन्नी के தெரிஞ்சவன் मनुष्य मन्नी கேட்குறவன் அதோட பெரிய मनुष्य. मतलब मीन्स जो फॉरगिव करते हैं, जो वो फॉरगिवनेस देते हैं, वो बड़ा इंसान है. उससे भी बड़ा इंसान है वो जो मांगता है माफ़ी. सो दैट इज़ व्हाट इट मीन्स. एंड आस्किंग सॉरी शुड एक्चुअली नॉट बी अ बिग डील, एंड यू आर डूइंग इट लेफ्ट राइट एंड सेंटर. या नहीं, मतलब मैं छोटा नहीं हो रहा ना उसमें. वी ऑल मेक मिस्टेक डिसीजंस इन लाइफ विच आर सम आर गुड, सम आर बैड. इट हैपन्स. So, ये था स्पेशल सेगमेंट. ये हमारा प्रोग्राम में नहीं था, बट ये स्पेशल सेगमेंट को हम मन की बात ब्रॉट यू बाय हरभजन सिंह बोल सकते हैं. मन के अंदर से जो भी है. बट ट्रूली फैबुलस बजुबा. आई एम सो ग्लैड आई गॉट यू ऑन द शो. एंड दिस इज, मैं एक ऐसे आपने बोला ना, मैंने एक डायरेक्शन सोचा था, आपने दूसरी सोची, बट उसने सोचा इस तरफ लेके जाओ. करेक्ट. सो इट वाज फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन कुटी स्टोरीज विद ऐश, ब्रॉट यू बाय पीटर इंग्लैंड एंड आवर ट्रैवल पार्टनर्स थॉमस कुक. Thank you for having me. Thanks, Bajuppa. I have a little something for you. हमारे स्पॉन्सरों की तरफ से. Oh, thank you.